مل کر اور اس وقت ہم ان کو انشاءاللہ بھاری اکثریت سے علی موسیٰ جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے۔ میں اب یہ کہوں گا کہ بہتر ہوگا کہ سوالات اگر آپ کریں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ آج تحریک انصاف کے کل کچھ لوگوں نے آپ پر الزام لگایا کہ آپ نے ہار چوری کی اور کرپشن کے آپ پر کیسز ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے خیر خواہ ہیں، ہمارے دوست ہیں اور ہمارے ساتھ رہے ہیں۔ پہلے بھی ایک اشتہار پیڈ انہوں نے دیا تھا تو اس وقت بھی میں نے ان کی انتظامیہ سے بات کی تھی، اور آج بھی وہی مخصوص طبقہ جو ہے کریکٹر اسیسینیشن کر رہا ہے، مگر ہمیں ان کی اس لیے پرواہ نہیں ہے کہ یہ 12 سال پہلے کا جو ایک بات کرتے ہیں اس کا بلو لٹمس ٹیسٹ ایک ہے کہ توشہ خانہ میں وہ چلے جائیں، اور بلکہ میں کہوں گا کہ جو مخصوص طبقے کے ہیڈ ہیں وہ چلے جائیں اور صرف دیکھ لیں کہ وہ چیز موجود ہے یا نہیں۔ اگر وہ موجود ہے تو پھر تم کو سمجھ آنا چاہیے کہ یہ کریکٹر اسیسینیشن ہے، اور اگر موجود نہیں ہے تو پھر ہم ذمہ دار ہیں۔ تو اس لیے دوسرا، میں یہ بھی ابھی ہمارے جو وکلا ہیں وہ پریس کانفرنس کریں گے کہ کیس کے لحاظ سے بھی ہم پہلے وہ جیت چکے ہیں، وہ ہمارے حق میں فیصلہ ہوا ہے، اور نواز شریف کی گورنمنٹ کے جب تھا اس وقت بھی انویسٹیگیشن ہوئی تھی اور وہاں بھی ہمیں کلیئر کیا گیا تھا۔ اور میں صرف سوال ایک کروں گا کہ توشہ خانہ کا کیس ابھی بھی چل رہا ہے، اس میں میاں نواز شریف صاحب بھی، آصف علی زرداری صاحب بھی اور میں بھی اس میں شامل ہیں۔ اگر ان کی 4 سال حکومت رہی، اگر یہ کیس بنتا تھا تو میرے اوپر ایک دوسرے کیسز بنائے یہ بھی بنا دیتے، مگر عدالتیں کھلی ہیں، جو جانا چاہے ان کی مرضی، مگر ان کو مایوسی ہوگی اور وہ اپنی جو ایک قسم کی جو ان کے دل آزاری ہو رہی ہے الیکشن کی وجہ سے وہ نکال رہے ہیں۔ اچھا سر، عمران خان کی معافی کیا لگتا ہے ابھی بھی لاڈلا ہے عمران خان؟ دیکھیں، میں ان کا ترجمان تو نہیں ہوں، مگر یہ ہے کہ ہم عدالتوں کا احترام کریں۔ سر، یہ خان صاحب نے کال دی ہے، موجودہ دوسری صورتحال یہ ہے کہ سیلاب زدگان اس وقت شدید مشکل میں ہیں اور وہ جلسے کر رہے ہیں اور کال بھی دے رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ دیکھیں، وہ تو یہ کہتے تھے کہ جب وہ بہاولپور گئے یا کہیں جلسے پہ ہیں تو لوگوں نے کہا کہ ملک ڈوب گیا ہے، اور جنوبی پنجاب بھی ڈوبا ہوا ہے، سندھ ڈوب گیا ہے، بلوچستان ڈوب گیا ہے، KPK ڈوب گیا ہے۔ اور اس آپ کو یاد ہوگا جو یہ الیکشن پوسٹپون ہوا تھا 1 ماہ آگے ہوا، تو وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی، سیلاب کی بتائی گئی تھی، جو چیف الیکشن کمشنر نے بتایا کہ الیکشن کی وجہ سے ہم یہ نہیں کرا سکتے۔ تو جب ایک الیکشن نہیں کرا سکتے تو پورے ملک میں الیکشن ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مجھے بتائیں کہ الیکشن کا کرانے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ الیکشن ایک آئین میں درج ہے۔ جب یہ کہتے تھے کہ ہم 2023 میں الیکشن کرائیں گے اور 5 سال کے لیے 2028 تک ہم ہی حکومت میں رہیں گے، تو اب یہ کس حیثیت سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تاریخ دی جائے؟ ہم ان کے پابند نہیں ہیں۔ سر، یہ بتائیں کہ آپ پر شاہ مفتی صاحب نے یہ بات کی ہے کہ آپ جو ہے، آپ کے بیٹے جو ہے موسیٰ گیلانی ایف گرین کا پیسہ جو ہے وہ کرپشن کا پیسہ، اور آپ سب جو ہے ووٹ خریداری میں لگے ہوئے ہیں اس کرپشن کے پیسے، اس حوالے سے وہ اس لیے ہار رہے ہیں، تو اس لیے وہ توجہ اپنی ہٹانا چاہ رہے ہیں، اپنی نفرت جو ہے وہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان کو اس قسم کی کریکٹر اسیسینیشن سے اور اس قسم کے الزامات جو ہیں وہ 16 تاریخ کو نظر آ جائیں گے۔ اگر عمران خان لانگ مارچ کرتے ہیں تو اسٹریٹجی کیا ہوگی حکومت کی؟ آپ اتحادی ہیں۔ دیکھیں، حکومت اسٹریٹجی اس موقع پہ بنائے گی، ہم پہلے کیا بتائیں گے۔ اچھا سر، شاہ محمود قریشی صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کی بیٹی نے حلف تو لینا نہیں، آپ الیکشن پہ کیوں لڑ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو گیلانی خاندان کو حقیقت اور زمینی حقائق بتانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، میں اس پہ کیا آپ کمنٹ کر سکتا ہوں۔ کے حوالے سے جو
बात सामने आई है, उस हवाले से पाकिस्तान को आलमी सतह पर बड़ी शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़ा है, लेकिन वो इस साइफर को ये कह रहे हैं कि ये हमारे जो मौक़िफ़ है वो दुरुस्त साबित हुआ है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, उनके कहने से फ़र्क नहीं पड़ता। अब तो आप बैठे हैं, मीडिया और पूरी कौम बैठी है, सबको समझ आ गई कि इनका बयानिया जो था वो झूठ पर मबनी था। और वो साइफर जो है वो हमारे दौर में भी आते थे और अभी भी आ रहे हैं, और उसका साइफर का एक तरीका कार होता है कि फ़ॉरेन ऑफिस के लेवल पे ही वो ख़त्म हो जाता है, मगर ये नहीं होता कि आप उसको कागज़ बना के कहें ये ख़त था और ख़त लहराएं जलसों में और कहें कि जनाब हम ये जो साइफर है हमारे ख़िलाफ़ साजिश हुई। भाई आप ये क्यों नहीं कहते कि आप इलेक्शन हार गए? ये क्यों नहीं कहते अदम इत्मीनान पाकिस्तान की तारीख़ में एक ही कामयाब हुआ है और वो आपके ख़िलाफ़ हुआ है? आज भी नहीं हुआ। जब मैं जीत गया सेनेट के इलेक्शन में, उस वक्त भी इनके अपने सदर ने कहा कि यू हैव लॉस्ट द मेजॉरिटी एंड टेक द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। उस वक्त मैंने किया था, मुझे अमेरिका ने जितवाया था नेशनल यहाँ सेनेट का इलेक्शन। तो इसलिए ये तो लोगों की तवज्जो हटाने के लिए लोग समझ चुके हैं कि झूठ पर मबनी बयानिया था। अब इस बयानियों को लोग बाय नहीं करते। सर, महंगाई और लॉ एंड ऑर्डर की वजह से अवाम बहुत शदीद मुश्किलात का शिकार है। महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, ना लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल हो रहा है। इस हवाले से आप कहते हैं? देखें, जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है, हमने बहुत मुश्किल डिसीजन लिया था। एक तरफ मुल्क था, एक तरफ पार्टी थी। हमने सबने मुश्तरका तौर पर तमाम पार्टीज़ ने जो भी हुकूमत में इस वक्त मौजूद हैं, ये फैसला किया कि इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से, IMF के मुआहदे की वजह से ये महंगाई का तूफ़ान आएगा। हमने उस वक्त भी इनके ख़िलाफ़ एहतजाज किया, मगर ये जो मुआहदे होते हैं ये रियासत के साथ होते हैं, पार्टियों के साथ नहीं होते। तो इसलिए अगर हम उस पर अमल दरामद न करते, मुल्क डिफ़ॉल्ट में चला जाता, हम आइसोलेशन में चले जाते, मुल्क का दिवालिया हो जाता। हमने मुश्किल फ़ैसला किया कि हम जो इनका मुआहदा हुआ था स्टेट के साथ, वो हम उस मुआहदे पर चल रहे हैं, जिसकी वजह से आपने देखा अब डॉलर की कीमत कम हो रही है और ऑयल प्राइसेस कम हो रही हैं। इंशाअल्लाह बिजली भी कम होगी, मुल्क स्टेबल होगा, इकॉनमी स्टेबल होगी और मुल्क तरक्की करेगा। मगर इन द एंड में ये कहूँगा कि लॉ एंड ऑर्डर आफ्टर द 18th अमेंडमेंट, लॉ एंड ऑर्डर और महंगाई जो है दैट्स अ प्रोसेस सब्जेक्ट। प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, साइबर की कैटेगरीज भी आप जानते हैं, उसकी सेंसिटिविटीज भी आप जानते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर कहता है मेरे पास था, कहीं गुम हो गया, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? मुल्क की सिक्योरिटी का मामला। देखें, पहली तो बात है कि जब झूठ होगा तो झूठ पे कई झूठ और बोलने पड़ेंगे। तो साइफर जो है, अगर एम्बेसडर ने साइफर भेजा है तो उसमें उसने तजवीज़ भी दी है कि आप उसका दिमाश करें, ये एम्बेसडर का। तो वो तो उससे हट के ऊपर कुछ हो नहीं सकता, अपने वॉर डिक्लेयर तो नहीं करनी थी। तो इसलिए उन्होंने मिसहैंडल किया है, उसको एक बयानिया बनाने की कोशिश की है। इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और कई पर्दा नशीनों के नाम हैं। साहब, ये कहा जब ये साइफर भेजा गया था तब इमरान खान की हुकूमत थी, उससे काफ़ी अर्सा पहले जो है ये भेजा गया था। उन्होंने जो है ये छुपा के रखा था। PDM की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता था, इमरान खान की हुकूमत है वो तहकीकात करवा लेते कि भाई वो सच्चा है या झूठा है। अब जो है PDM की हुकूमत है, अब आप 6 माह हो गए, अब आप तहकीकात क्यों नहीं करवाते कि भाई वो सच्चा है या झूठा है, भेजा गया या नहीं भेजा गया? देखें, पहली बात ये है कि आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जब उनकी हुकूमत थी और उनको काफ़ी अर्सा पहले ये साइफर मसूल हुआ तो वो अपनी हुकूमत के दौरान इन्वेस्टिगेशन करवा लेते। चूँकि था गलत, वो क्या करवाते इन्वेस्टिगेशन। जब उनकी हुकूमत थी, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग की, उसके अंदर भी वो आया और नेशनल सिक्योरिटी ने फैसला किया कि ये कोई साजिश नहीं थी उनके अपने दौर में। तो फिर ये कहा कि जी अब इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाए, सदर इसके ऊपर करें। सिर्फ मकसद ये था कि अदम इत्मीनान से हम बच जाएं, इनके ऊपर गद्दारी का लेबल लग जाए तमाम पार्टियों के ऊपर, और बाशमूल वो पार्टी जो पौने 4 साल इनके साथ खड़ी रही। वफाकी हुकूमत ने सर वफाकी हुकूमत ने पंजाब को
गंदम देने से जो है वो इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम बाकी सूबों को देंगे, पंजाब को नहीं देंगे। पंजाब ने जो है बाहर से मंगवाने का फैसला कर दिया। इस हवाले से क्या है? देखें, मैं इस पे कमेंट इसलिए नहीं कर सकते, मेरे नॉलेज में नहीं है। गिलानी साहब, प्रेसिडेंसी में इमरान खान की एक अहम सरकारी शख्सियत की मुलाकात हुई है। आप क्या समझते हैं कि आइन में इस तरह से मुमकिन है, आइन इस चीज़ की इजाज़त देता है कि अपोजिशन लीडर से सरकारी शख्सियत प्रेसिडेंसी में मुलाकात हो? देखें, पहली तो बात यह है कि उसकी तस्दीक मैं नहीं कर सकता कि हुई है या नहीं हुई। और दूसरी, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, आई एम नॉट ए स्पोक्स पर्सन। एंड नंबर 3 कि जब वो बाहर कोई बात नहीं आई दोनों तरफ से, जब दोनों तरफ से बात नहीं आई तो मैं उसकी क्या तस्दीक करूँ? अच्छा सर, ये मखदूम साहब ने शाहरुख साहब ने दिन कहा कि हमारी पार्टी को तकसीम और पंजाब में हुकूमत तब्दील करने की कोशिश हो रही है। क्या इस हवाले से PTM को कोशिश कर रही है? देखें, जब वो नून लीग में थे उस वक्त उनके खिलाफ बोलते थे, जब वो पीपल्स पार्टी में थे फिर पीपल्स पार्टी के खिलाफ बोलते थे। लास्ट टाइम आपको याद होगा जब उनके बेटे का MP का इलेक्शन हो रहा था तो उन्होंने ओपनली कहा था कि मुझे मेरी पार्टी ने हरवाया है। तो तकसीम तो ये खुद करना चाहते हैं, तो मतलब ये दूसरों की तरफ क्यों देखते हैं, इनकी तरफ देखा जाए। साहब ने आपके खिलाफ जो है वो रेफरेंस दायर किया है सेनेट में कि आपकी अहलियत पर सवाल उठाए हैं कि आपने कोशा खाना में नवाज शरीफ और जरदारी साहब को गालियाँ दी हैं और उन्होंने कहा कि आपकी अहलियत को भी चैलेंज किया कि आपको DC दिया जाए। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? तो मुझे है कि अगर अदालत मुझे कर देती है तो मैं खुश हूँगा। मैं तो नहीं उनकी तरह रहूँगा कि मैं वज़ीर आज़म क्यों नहीं रहा। तो अगर मैंने शुरू में कह दिया है कि अदालतों का मैं एहतराम करता हूँ, जो भी फैसला करें, खिलाफ करें या हक़ में करें, मैं उनके साथ हूँ। मगर तोशा खाना का जो केस है वो अभी सब जुडिस मैटर है, आप पहले फैसला कैसे कर सकते हैं? शाहरुख कुर्सी ने कहा कि बिलावल भुट्टो साहब ने लॉन्ग मार्च किया, हमने फ्री हैंड दिया। फजलुर रहमान ने भी लॉन्ग मार्च किया, हमने फ्री हैंड दिया। तो क्या अब इमरान खान अगर लॉन्ग मार्च करेगी तो गवर्नमेंट फ्री हैंड देगी या उनका कोई? देखें, मैं पहली बात ये करूँ कि जब आपको याद होगा कि PDM का जो पहला जलसा मुल्तान में हुआ था और यौम तासीस था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और मुल्तान में तमाम रास्ते बंद थे, ट्रांसपोर्ट बंद थी, मीडिया के ऊपर पाबंदी थी, और उसके अलावा पेनाफ्लेक्स के ऊपर पाबंदी थी, और जो केटरर्स थे उनको इजाज़त नहीं थी कि वो कुर्सियां तक दे सकें, खाना दे सकें, और जनरेटर्स को भी इजाज़त नहीं थी कि वो बिजली दे सकें। और जिस कसम कुर्सी, और मेरे 2 बेटे जेल में थे और हमने वो जलसा करके दिखाया, तो आज वो किस मुंह से कह रहे हैं कि हमने फ्री हैंड दिया? ये फ्री हैंड था? दो बेटों को जेल में डाल के कहेंगे ये फ्री हैंड था, और तमाम PDM के वर्कर्स जेल में थे। एक तो बच्चा 14 साल का था, वो आज भी उसका बाप मुझे गिला देता है कि आपने मेरे 14 साल के बच्चे को भी जेल डलवा दिया। तो मैंने कहा मैंने नहीं डलवाया, वो उस वक्त की हुकूमत ने डलवाया। अब लॉन्ग मार्च को आप क्या करेंगे, किस तरह हैंडल करेंगे? मतलब फ्री हैंड देंगे या? लेट द प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, ही इज द बॉस। आजकल जो इकदाम किए जा रहे हैं, डॉलर सस्ता हो रहा है और महंगाई के हवाले से जो इकदाम कर रहे हैं, पेट्रोल कम कर रहे हैं, तो ये नहीं लगता कि अगले साल आज नून लीग की तरफ से गाय बगाए ऐलान किया जा रहा है कि 2023 जो है इलेक्शन का साल है, तो ये इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं, पीपल्स पार्टी इस हवाले से कोई तैयारी कर रही है? देखें, इलेक्शन टाइम पे होगा तो इसलिए तैयारियां वो कर रहे हैं लॉन्ग मार्च की और दूसरी चीज़ों की। वो कहते हैं कि हमें इलेक्शन की तारीख दें वरना हम धरना देंगे, और उठेंगे नहीं जब तक आप तारीख नहीं देंगे। तो मैं सिर्फ ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट वो कोई करेंगे तो हम उनकी किस चीज़ को माने बात को? तो वो है ही गैर आईनी इस्लामिक अपोजिशन। जब भी कोई आएगी वो तो यही कहेगी कि जी आप जाएं, हमें इलेक्शन करना। तो इसलिए ये गलत रवायत जो है वो हम नहीं चाहते कि जारी करें। जब थक जाए मुझे बता दें। मेहरबानी जी, शुक्रिया। इंशाल्लाह